Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 1st of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss various important current affairs and relevant facts and concepts for your examination. So let's start with the first one. The first one is Corruption Perception Index, CPI. Okay. In recent release, India's rank in Corruption Perception Index 2023 has slipped. It means कम हो गई है 293. ये लिस्ट जो आती है 180 कंट्रीज की लिस्ट होती है और दिस टाइम इंडिया गॉट द रैंक ऑफ 93 and this was for the year of 2023. It was recently released. The score of India in this index was 39 points. So now let's have some basic static and background facts and concepts regarding this Corruption Perception Index. Actually it is an annual index. Okay, sometimes you may find some questions with they can ask you that this or that index is released annually or biannually or triannually. So this is an index which is released every year and it is released by the Transparency International. What is Transparency International? Transparency International is a global society, that is a civil society organization, and its headquarters is in Berlin, that is in Germany. These kind of basic facts are very important for your every exam, because these kind of basic facts are always asked in your examinations. First time started this index, it was in 1895, and now it is a leading global indicator for public sector corruption. So one more important point you should focus is that this index focus on public sector in corruption. It means the government field, means the corruption in the government departments, ministries, officers, offices, everything which is associated with the government of any nation or the state or its local government. It means it's very clear that Corruption Perception Index do not talk about corruption in private industry. So sometimes you can find a question which may try to ask you that it is the index regarding private sector or public sector. So keep it in mind that it's only about public sector corruption. It ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption. It means उनमें कितना करप्शन देखा जाता है, लोगों का उसमें क्या व्यूज़ हैं एक्चुअली ऑफ द एक्सपर्ट्स. तो उसके बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है उन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में और उन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में. When we talk that how the Corruption Perception Index is made and how the score indicate and what are the indications regarding this index, then 0 to 100. The scale is 0 to 100. There is a scale where we start from 0 to 100. Okay. On this scale, countries get score. That how much score a country got. 0 indicates highly corrupt country and 100 indicates very clean country regarding public corruption. It means when a country get a score of 5, then it means a near clean country. If a country get 100, it means fully corrupt country, the highest corrupt country. If it get 50 score, then it is a corrupt country, a more corrupt country in comparison to this जो score of 5. तो जिस कंट्री को 5 स्कोर मिला वो काफ़ी हद तक क्लीन है, उसमें करप्शन कम है. लेकिन जब किसी कंट्री को 100 स्कोर मिल रहा है, 50 स्कोर मिल रहा है, तो इट मीन्स वो कंट्री काफ़ी करप्ट है.
If we talk about the sources of data, when this organization prepare the corruption perception index, then there are around 13 external sources हैं, including World Bank, World Economic Forum, private risk, consulting companies, think tanks, etc. अब यहाँ पर एक बात और आती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। क्या कि ये जो स्कोर है रिफ्लेक्ट्स द व्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल। इट मींस इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पब्लिक के व्यूज इंक्लूड नहीं होते। तो मींस जो एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, उनके व्यूज को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि विच कंट्री इज more corrupt and which country is less corrupt. So let's have some key points regarding this index of 2023. CPI results show that most countries have made little to no progress. If we talk about 2023 index, तो इस इंडेक्स से पता चलता है कि ज़्यादातर कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, उन्होंने या तो बहुत लिटिल, वेरी लिटिल या कोई प्रोग्रेस नहीं किया है पब्लिक सेक्टर के करप्शन को टैकल करने के लिए। इट मीन्स सारे के सारे कंट्रीज में अगर हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पर एफर्ट्स नहीं हो रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। सीपीआई ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये लास्ट 12 ईयर से 43 ही चला आ रहा है। इट मीन्स लास्ट 12 ईयर में पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा करप्शन को टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस नहीं आए हैं। इफ़ यू टॉक द फर्स्ट रैंक होल्डर दैट इज डेनमार्क, ये इसने 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, इट मींस लास्ट 6 ईयर से डेनमार्क टॉप पोजीशन पर है इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। इट मींस अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड में सबसे कम करप्शन कहाँ पर है तो इट इज़ डेनमार्क। ठीक है, सोमालिया की अगर हम बात करें तो इसको लास्ट रैंक मिली है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक जो क्लीन कंट्री है विदाउट करप्शन दैट इज़ डेनमार्क, और द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज सोमालिया। अदर मोर करप्ट कंट्रीज आर वेनेजुएला, सीरिया, साउथ सूडान और यमन। ये कंट्रीज हैं यहाँ पर जो करप्शन है काफ़ी बड़े लेवल पर है। इंडिया हैज़ टाइड विद मालदीव्स। किससे टाई किया है कि कजाकिस्तान, लिसोथो टू रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया के ही लगभग रैंक इसकी है, मालदीव्स की है, कजाकिस्तान की है और लिसोथो की है। ये तो आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। नाउ हमें इंडिया के अपने पड़ोसियों से उनके साथ में तो डिस्कस मीन्स कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो बदमाश पड़ोसी जो छोटा भाई हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान, उसको 29 रैंक मिली है और इसमें इसको जो स्कोर 29 है और इसका जो रैंक है वो है 133। तो इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना तो इसको 42 स्कोर मिला है और इसकी रैंक कितनी है 76। तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना अगर इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और इसको ठीक माने तो चाइना की सिचुएशन ठीक है, जबकि पाकिस्तान की वर्स्ट कंडीशन है इंडिया के कंपैरिजन में। नाउ शुमांग लीला, ये भी काफ़ी समय से न्यूज़ में है। वाई यू नो कि इन रिसेंट मंथ्स देयर हैव बीन वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में कुछ एथनिक वायलेंस काफ़ी समय से चल रहा है, तो उसकी वजह से जो आर्टिस्ट हैं जो शुमांग लीला को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से ये किस में है, न्यूज़ में है, बिकॉज जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं एथनिक कम्युनिटीज़ पर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर, तो उससे ये भी बचे हुए नहीं हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन मणिपुर। ये मणिपुर का ही एक ट्रेडिशनल थिएटर है। इसमें मीन्स क्या होता है, स्टोरीज़ को परफॉर्म किया जाता है जिसमें फीमेल आर्टिस्ट का रोल भी मेल एक्टर ही जो है परफॉर्म करते हैं और मेल एक्टर्स आर प्लेड बाय फीमेल आर्टिस्ट। अगर वहाँ पर जो थिएटर फीमेल कर रही हैं
तो उसमें मेल और फीमेल का दोनों रोल ही कौन करती हैं, फीमेल करती हैं। लेकिन अगर ये प्रोग्राम केवल मेल कर रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों का ही रोल कौन करते हैं, और मेल एक्टर्स ही करते हैं इसमें। इसका माना जाता है कि ये लाई हराउबा से ही मीन्स जो है इंस्पिरेशन इसको मिलती है, और ये मणिपुर की मैटी कम्युनिटी का क्या है, एक ट्रेडिशनल उसका कल्चरल जो है डांस फेस्टिवल वगैरह है जहाँ इनको ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ से आपको क्या माइंड में रखना है कि शुमांग लीला कहाँ पर परफॉर्म होती है, तो मणिपुर में होती है। क्या है ये, इनका एक थिएटर है, नाटक वगैरह जो करते हैं ये एक थिएटर है। किससे इंस्पायर्ड है ये, तो लाई हराउबा से इंस्पायर्ड है। बस इतना सा आपको इसमें लर्न रखना है, बाकी जो कुछ है वो सब आपके जनरल नॉलेज के लिए है। नाउ अभी क्या हुआ है, रिसेंटली अल्जाइमर जो डिजीज़ है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और क्या न्यूज़ में रहा है इसका कंटेक्स्ट भी हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रेन एंड अल्जाइमर का जो ब्रेन है उसमें हम क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखो ये वाला जब हम ब्रेन देख रहे हैं तो जो सेल्स वगैरह जो हमको दिख रही हैं कॉर्टेक्स वगैरह, उसमें देखो बहुत ज़्यादा मीन्स क्या नहीं है, गैप नहीं है ना, ये नॉर्मल ब्रेन है। बट व्हेन यू सी द ब्रेन विद अल्जाइमर, तो ये देखिए कितना सारा गैप इनकी कॉर्टेक्स में, इनकी ब्रेन के अंदर का है। तो इससे क्या होता है, जब सेल्स की कनेक्टिविटी और उसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, मीन्स कनेक्टिविटी कम हो जाती है अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेमोरी है उस पर क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अदर पॉइंट्स को, ठीक है, ये हो गया बेसिक इसका। देखो एज पर रिसेंट स्टडी ने ये कहा है कि कुछ रेयर मेडिकल एक्सीडेंट्स ऐसे हैं कि दे कैन लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ अल्जाइमर फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। कुछ केसेस में ये ट्रांसमिट में भी हो सकता है। जनरली इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बट इन सर्टेन केसेस, रेयर केसेस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। इट इज़ अ ब्रेन कंडीशन। अल्जाइमर क्या है, इट्स अ ब्रेन कंडीशन है। कॉजेस प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेमोरी, मीन्स धीरे धीरे जो मेमोरी है उसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एकदम से मेमोरी पर प्रॉब्लम या अटैक नहीं करता, बस धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। अब उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में डिफेक्ट्स आएंगे, थिंकिंग आपकी कम होगी, लर्निंग पावर आपकी कम हो जाएगी, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, डिमेंशिया का ही एक टाइप है। डिमेंशिया क्या है, भूलने की बीमारी। जो गजनी में देखा था आपने, उसमें भूल जाता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म था, लेकिन ये काफ़ी मीन्स लॉन्ग टर्म टाइप का होता है। ये अकाउंटिंग फॉर 60 से 80% के जो केसेज होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इट इन्वॉल्व्स पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। इन सब पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उन पार्ट्स पर ये अफेक्ट करता है, और वो भी नेगेटिवली। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पर्सन है वो अपनी डे टू डे लाइफ, डेली एक्टिविटीज़ को भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता जब उसका अल्जाइमर जो है मीन्स ज़्यादा अगर उसको अफेक्ट करता है। और द बेसिक थिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज इज दैट ये 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा के एज के लोगों के साथ में मोस्टली होता है। बाकी ओनली 10% केसेस में यंगर जो पॉपुलेशन है उसको ये होता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या है भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी तो हमने बता दी, व्हाट आर द कॉजेज़। तो एग्जैक्ट कॉजेज़ की अगर हम बात करें अल्जाइमर की, तो अभी किसी को पता नहीं है, फुली अंडरस्टूड नहीं है। बट इसके जो बेसिक कॉजेज़ हैं वो डॉक्टर्स जो बताते हैं अपने जो रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, सपोज कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन, मोबाइल वगैरह ये सब चलाते हैं फालतू में, ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, हेल्दी डाइट नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो वो सब क्या है इसके कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अर्ली साइंस ऑफ डिजीज़ इंक्लूड फॉरगेटिंग रीसेंट इवेंट्स और कन्वर्सेशन, भूल जाते हैं अभी क्या कह रहे थे। कई बार होता है ना, अरे मैं कुछ कह रहा था तो बताओ जरा मैं क्या कह रहा था, है ना, होता है कई बार आपके साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में, तो वो अर्ली इंडिकेशंस होते हैं। ओवर टाइम धीरे धीरे
इट प्रोग्रेसेस टू सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम्स। स्टार्टिंग इस बात से होगी छोटी छोटी चीज़ों से, और लास्ट में आकर के आपकी एवरीडे टास्क जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको भी आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। अभी तक तो इसका कोई प्रॉपर मीन्स क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन सर्टेन मेडिकेशंस या थेरेपीज योगा वगैरह के थ्रू इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है इससे बाहर निकलने के लिए। सो गाइस, ऑलवेज परफॉर्म सम एक्सरसाइज, सम योगा, मेडिटेशन, सम ब्रेन एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग स्टाइल, ये सब आपको करते रहना चाहिए अल्जाइमर से अगर बचना है तो। नाउ कुडावलोई सिस्टम की बात करते हैं हम, तो ये क्या है, ये देखो, ये रिपब्लिक डे परेड पर जो टैब्लू मीन्स शो किए जाते हैं वहाँ से मार्च पास्ट इनका होता है, तो उनमें उनको मीन्स प्राइजेस मिलते हैं, सॉरी अवार्ड्स मिलते हैं, और उनमें से इस बार कोडावलाई सिस्टम है तमिलनाडु का, इसको 3rd बेस्ट अवार्ड मिला है, 3rd रैंक पर ये आया है। बाकी को हम धीरे धीरे करके क्लास में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कौन था, सेकंड क्या था, और किस मार्च पास्ट को, मार्चिंग कंटिजेंट को फर्स्ट रैंक मिला, तो वो सब भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए जाते हैं। तो रिपब्लिक डे परेड पर जो कोडावलाई सिस्टम है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। क्या है अब ये कोडावलाई सिस्टम, लेट्स अंडरस्टैंड। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कोडावलाई सिस्टम एक एंशिएंट सिस्टम था तमिलनाडु में, और इस सिस्टम को कहा जाता है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की मदर इसको कहा जाता है, बिकॉज देखो आप एक बात सोचिए, जनरली हमको क्या समझाया जाता है कि जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, यही तो वो मीन्स जो है बात करते हैं। बट एक्चुअली में इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस में था। जब ब्रिटिशर सोच भी नहीं रहे होंगे तब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक चीज़ें प्रैक्टिस में थी, कि इन तमिलनाडु में कोडावलाई इलेक्टोरल सिस्टम हुआ करता था, जो कि 10th सेंचुरी में ही हो गया था, जो कि चोल पीरियड में हुआ करता था। ये पता चला है हमको उथिरामेरूर के इंस्क्रिप्शन से। उथिरामेरूर कहाँ पर है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। अब होता क्या था इस कोडावलाई सिस्टम के थ्रू, कि जो लोग गाँव की जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उनका इलेक्शन हुआ करता था। जैसे आज ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है प्रधान के लिए, सरपंच के लिए, कुछ कुछ वैसे ही इलेक्शन हुआ करता था। आज तो बहुत मीन्स उसमें क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट्स हो गए हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था। तब इसमें बहुत सारा मीन्स एक हल्के लेवल पर ये सब हुआ करता था, मीन्स एक आइडिया हुआ करता था, मीन्स एक आइडिया ज़रूर हुआ करता था कि कैसे जो है एक इलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या था कि जो लोग कंटेस्ट करते थे इलेक्शन, कि भाई मेरे को बनना है गांव का प्रधान या सरपंच, व्हेन समबडी वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, देन देयर वाज अ मटका, एक मटका हुआ करता था, एक पॉट हुआ करता था। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये देखो एक मटका हुआ करता था। उन सबके नेम की जो पर्ची होती थी, स्लिप होती थी, उनको इस पर्ची में, इसमें, इस मटके में डाल दिया जाता था। सपोज करो कोई ए नाम का व्यक्ति है, फिर बी है, फिर सी है, ये सबके नेम्स की पर्ची उसमें डाल दी जाती थी, ठीक है। सब अपने अपने नेम लिख करके उस पर पर्ची पे देते थे। ये पर्ची भी जो मीन्स कुछ पत्ते, लीव्स वगैरह हुआ करती थी उस समय, तो उसमें ये डाल दिया करते थे। फिर एक छोटा सा बच्चा, देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, छोटा सा बच्चा हुआ करता था। यहाँ पर जो इन्होंने इसको शो किया है कि ये देखो कोई छोटा एक बच्चा हुआ करता था, वो इसमें से फिर पर्ची कोई एक निकालता था, ठीक है, पिक करता था उसमें से कोई एक पर्ची को, और जो पर्ची जिसके नाम पर होती थी उसी को हम क्या कहते, उसी को भी क्या कर दिया जाता था, इलेक्ट कर दिया जाता था उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए। तो ये 10th सेंचुरी के आसपास की प्रैक्टिस तमिलनाडु में हुआ करती थी, और तब भी इंडिया में क्या होता था, जो है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। भले ही वो आज के सेंस में ना हो कि जिसको ज़्यादा वोट मिली वही इलेक्ट होगा, जिसको कम मिली वो नहीं होगा, बट कम से कम एक सेंस तो था कि लोगों की पसंद का या इस तरीके का कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। विलेजेस जो हुआ करते थे
वो भी डिवाइडेड इनटू वार्ड। जैसे आज भी जब हम इलेक्शन करते हैं इंडिया में तो उनको हम वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपका एक विलेज हो गया, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मोहल्ले होंगे, गली वगैरह होंगी, तो इनको वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं या आप जो है म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी वार्ड होते हैं जिसमें सभासद वगैरह होते हैं। तो मान ली यहाँ से ये व्यक्ति है, यहाँ से ये है, सी डी ई, ये सब व्यक्ति एक एक करके जो हुआ करते थे और एक व्यक्ति अपने उस वार्ड को रिप्रेजेंट करता था। जैसे आज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक एमएलए होता है या एमपी होता है, वो एमएलए या एमपी दोनों ही अभी 10 लाख की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस समय पर भी जो इलेक्शन हुआ करते थे तो उसमें वार्ड्स के थ्रू एक एक मेंबर क्या करता था, अपने उस एरिया को, उस वार्ड के एरिया को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था उस लोकल लेवल पर। तो ये हुआ करता था इनका कोडावोलाई सिस्टम। तो इसलिए कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कंटेस्टेंट्स के नेम पर उसमें रिटेन जाते थे, पाम की लीव्स हुआ करती थी, उन पर उनके टिकट्स, उनके नेम लिखाए जाते थे, इनको बुलाए कहते थे, और एक मटके में रखा जाता था। उस मटके को तमिल में क्या कहते हैं, कुड़ा कहते हैं, ठीक है। और एक छोटे बच्चे से उसमें से पर्चियों को हम क्या करवाते थे, निकलवाते थे। तो इस प्रकार से ये हुआ करता था हमारा जो है डेमोक्रेटिक एक सिस्टम हुआ करता था लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो हमने आज ये डिस्कस कर लिया एक कि जो तमिलनाडु में इसको मीन्स क्या मिली है, थर्ड रैंक मिली है इसको। नाउ इन अपकमिंग सेशंस वी विल डिस्कस दैट विच डब्ल्यू गॉट द फर्स्ट रैंक, विच गॉट द सेकेंड रैंक, जो कल्चर में मिलती है रैंक। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो मार्च पास्ट वाले जो कंटिजेंट होते हैं कि उसमें इंडियन आर्मी की किस रेजिमेंट को मिला, सीआरपीएफ को मिला या दिल्ली पुलिस को मिला या किसी और स्टेट पुलिस को मिला फर्स्ट रैंक वाला जो अवार्ड मिलता है, ठीक है, जो वहाँ से निकलते हैं ना परेड करते हुए। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इस बार जो बेस्ट अवार्ड मिला कौन से वाले कंटिजेंट को मिला। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है इस बार रिपब्लिक डे परेड में ऐसा क्या स्पेशल था, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द रिवीजन ऑफ द टुडेज सेशन। तो क्या रिवीजन, देखो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इस बार रिलीज हो गई। इसको रिलीज करती है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस बार इंडिया की रैंक है इसमें कितनी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक अलग कलर से। इंडिया की अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो इंडिया की रैंक है 93, टोटल कंट्रीज थे 180 और इंडिया का जो स्कोर था वो 39 था, ठीक है। और इसको रिलीज़ कौन करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करती है। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हैं, बर्लिन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के 100 तक की रैंकिंग होती है। 0 मीन्स जिसका जो है हाईली करप्ट कंट्री है और 100 मीन्स हाईली क्लीन कंट्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, क्लीननेस है। ये जो व्यूज़ होते हैं इसमें एक्सपर्ट्स के होते हैं, बिजनेस पीपल के होते हैं, पब्लिक के व्यूज़ इसमें रिप्रेजेंट नहीं होते। बाकी जो डेनमार्क है उसको फर्स्ट रैंक मिली, सोमालिया को लास्ट रैंक मिली है। इंडिया के साथ में कुछ कंट्री हैं जिन्होंने रैंक को शेयर की है। पाकिस्तान को अभी 133 रैंक है और चाइना की 76 रैंक है। कई बार वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है कि इंडिया की रैंक इसमें से किससे ज़्यादा है ना। शुभांग लीला को हमने डिस्कस किया, मणिपुर का एक लोकल थिएटर है जिस पर इस समय वहाँ के वायलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं और इसमें क्या क्या इसमें जो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें ब्रेन में इश्यूज हो जाते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया का ये टाइप है, जनरली ये नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन सर्टेन एक्सीडेंटल केसेस में इट कैन बी कम्युनिकेटेड। लाइक मीन्स बहुत ज़्यादा आप लंबे समय से अगर कोई इलाज करवा रहे हो, किसी डिजीज़ का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और वहाँ की जो मेडिसिन वगैरह हो सकती हैं, जो ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उससे भी इस पर इम्पैक्ट हो सकते हैं। मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है, जनरल केसेस में ये ओनली 10% चांसेस हैं कि किसी युवा को हो जाए। एग्जैक्ट कॉज इसके भी पता नहीं है। सिम्टम्स हमने डिस्कस किए कि चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कोडावोलाई सिस्टम। ये कोडावोलाई सिस्टम जो था वो इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी है उसकी ये मदर है, यहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो इलेक्शंस हुआ करते थे वो
लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ करते थे, जिसमें एक मटके में जो टिकट्स होती थी उनको जो है डाल देते थे और एक बच्चे से उनसे उसमें से पिक करवाते थे। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन उस समय पर वार्ड्स में डिवाइड हुआ करता था। एंशियंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो आज हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप that you enjoyed today's session and also making your notes daily to enjoy and to revise at the last moment your topics. These notes will help you ultimately before the 5 or 10 days of the examination. So we are going to end today's session in the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए bye bye, take care.